start. Assalamu alaikum. My name is Dr. Aksa. First of all, I want to welcome respected seniors and my dear juniors. Today, the topic of presentation is dacryocystitis and dacryocystodynostomy. What are the specific learning objectives? By the end of this presentation, the learners will be able to describe the etiology of dacryocystitis, elaborate the presentation of dacryocystitis, and summarize the treatment options for dacryocystitis. Before going into details of dacryocystitis, first of all, a brief anatomy of lacrimal apparatus. Lacrimal apparatus is concerned with the production and drainage of tears, tears which provide lubrication to the eye. Lacrimal apparatus consists of lacrimal glands. Lacrimal glands, they reside in the lacrimal fossa, in the supralateral aspect of each bony orbit. This lacrimal fossa is formed by lacrimal fossa कौन बनाता है? Frontal bone बनाता है. Lacrimal fossa is formed by orbital part of the frontal bone. These lacrimal glands have ducts which open into the superior fornix, lateral part of superior fornix, and then they drain tears from the gland into the eye. In the eye, these tears lubricate the entire eye, and then by the action of gravity and pump action, they get sucked in the superior and inferior puncta, which are located at the posterior margin of the eyelids. These puncta open into the canaliculi, upper canaliculi and lower canaliculi. Each canaliculi has two parts, a small vertical part which is 2 mm perpendicular to the eyelid, and horizontal part which is 8 mm and it is oblique to the eyelids. Upper and lower canaliculus, they join together to form a common canaliculus which opens in the lacrimal sac. There is a mucosal flap at the entry of common canaliculus in the lacrimal sac, which is called valve of these valves usually allow unidirectional flow of tears. Tears आ सकते हैं अंदर, लेकिन यहाँ से reflux नहीं होगा, बाहर नहीं जाएंगे. This lacrimal sac has dilated upper part which is fundus 3.5 mm and a comparatively narrow lower part which is body of the sac, it is 10 mm. This lacrimal sac lies in the lacrimal fossa which is formed by the lacrimal bone and maxillary bone. This lacrimal fossa is continuous with the nasolacrimal duct inferiorly. This nasolacrimal duct has two parts, a 12 mm intraosseous part and a 5 mm meatal part. This nasolacrimal duct is continuous in the nose with the inferior meatus. So tears are produced by the lacrimal gland, enter in the eye, enter the puncta, canaliculi, nasolacrimal sac, duct, and finally exit from the nose. What is dacryocystitis? Dacryo means tear. Dacryo means tear. Cyst means sac, and itis means inflammation. So it's an inflammation of lacrimal sac. It's an inflammation of lacrimal sac most commonly due to nasolacrimal duct obstruction, leading to stasis of tears and secondary infection. Whenever there is nasolacrimal duct obstruction, आपके lacrimal sac में stasis होगा tears का, और ultimately it leads to infection. If we talk about the epidemiology, it has a bimodal distribution. Most cases occur after birth or in adults greater than 40 years of age. After birth congenital, and if after 40 years of age, it is acquired. Congenital nasolacrimal duct obstruction occurs in approximately 6% of newborns. Caucasians are more commonly affected than African Americans. Risk factors: every pathology which leads to narrowing of the nasolacrimal duct is a risk factor. Females are at greater risk due to their narrow duct diameter as compared to males. Then older age, as it leads to narrowing of
stage of the tears. Dacryolyths, which is a collection of shed epithelial cells, lipids, amorphous debris within the nasolacrimal system. Nasal septum deviation, rhinitis or turbinate hypertrophy. Neoplasm within the nasolacrimal system. There can be damage to nasolacrimal system due to trauma of nasoethmoid region or endoscopic or endonasal procedures. Systemic diseases such as granulomatosis with polyangiitis, sarcoidosis and SLE. And medications such as timolol, pyrocarbine, idoxuridine and trifluridine. Pathophysiology. It typically occurs secondary to obstruction of the nasolacrimal duct. Obstruction of nasolacrimal duct leads to stagnation of tears in pathologically closed lacrimal drainage system, with the stagnated tears providing a favorable environment for infectious organisms. Lacrimal sac will then become inflamed, leading to characteristic erythema and edema at the inframedial portion of the orbit. Positive organisms, most common are gram-positive, Strep aureus and Strep pneumoniae, but you can suspect gram-negative if patient is diabetic or is immunocompromised, like Haemophilus influenzae. Very rare fungi can also participate, but it's 4 to 7%. Depending upon the presenting symptoms, we can divide dacryocystitis into acute and chronic one. Acute dacryocystitis is an acute suppurative inflammation of the lacrimal sac characterized by the presence of a painful swelling in the region of the sac. If we talk about the clinical picture, it can be divided into 3 stages: stage of cellulitis, stage of lacrimal abscess, and fistula formation. In stage of cellulitis, there is painful swelling in the region of lacrimal sac. Swelling is red, hot, firm, and tender. Redness and edema also spread to the lids and cheeks. Epiphora. Constitutional symptoms such as fever or malaise. If resolution occur at this stage, अगर आप ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर नहीं करेंगे, it can progress. This is the stage of cellulitis. Anyone can describe? कोई भी बता दे कुछ जो भी नजर आ रहा है. ये देखिए ना, swelling है at the medial, below the medial canthus, red है, large है, discharge है, erythema है skin का, ये आपकी lid की swelling है, ये देखिए lower lid की भी upper lid की swelling है. Cellulitis. Stage of lacrimal abscess. If inflammation is continued and patient is not treated, it causes occlusion of the canaliculi due to edema. The sac is filled with pus, distends, and its anterior wall ruptures, forming a pericystic swelling. In this way, a large fluctuant swelling, the lacrimal abscess, is formed. It usually points below and to the outer side of the sac due to gravitation of pus and the presence of medial palpebral ligament in the upper part. सैक के अपर पार्ट को मिडल पैल्पेब्रल लिगामेंट कवर करता है, इसलिए जो ज़्यादा डिस्टेंशन होती है वो उसके लोअर पार्ट में होगी. लेक्रिमल एब्सेस, ये देखिए जो वाइट से नजर आ रहा है, सारी कलेक्शन ऑफ पास हो. नेक्स्ट इज स्टेज ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन. If abscess is also left untreated, उसको भी नहीं ट्रीट किया जाता, discharge spontaneous discharge हो जाएगा, leaving an external fistula below the middle palpebral ligament. Rarely the abscess may open into the nasal cavity, forming an internal fistula. या तो वो externally rupture हो जाएगा, fistula बन जाएगा, या फिर internally उसमें rupture हो जाएगा. ये देखिए यहाँ पे abscess बन गया, fistula बन गया. Treatment क्या? During cellulitis stage, systemic antibiotics and topical antibiotics to control infection, systemic anti-inflammatory, analgesic drugs and hot fomentation to relieve pain and swelling. ठीक है, तो उसके जितने भी acute symptoms हैं उनको आपने settle करना. During stage of lacrimal abscess, अगर abscess बन गया तो फिर क्या करेंगे?
फिर आपने pus should be gently squeezed out. The dressing should be done with betadine. Later, depending upon condition of the lacrimal sac, either DCT or DCR operation should be carried out. Otherwise, recurrence will occur. अगर abscess बन गया तो फिर आपने उसको drain करना है. If there is lacrimal fistula formation, after controlling the acute infection with systemic antibiotics, fistulectomy along with DCT or DCR should be performed. Acute में आपकी probing syringing contraindicated है, वो आपने नहीं करनी है. एक तो वो uncomfortable होगी, ज़ाहिर है acute phase चल रहा है, और दूसरे it would lead to creation of false stresses in the lacrimal sac क्योंकि tissue बहुत soft, friable होगा. इसलिए acute phase में नहीं करनी. एक बार एक्यूट फेज सेटल हो जाए, पेशेंट को आपने फॉलोअप पे बुलाना है, फिर आपने दोबारा असेस करना है, उसके बाद आप उसकी प्रोबिंग सिरिंजिंग लागू कर सकते हैं. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, कॉर्नियल एब्रेजन व्हिच मे बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्नियल अल्सरेशन, लिड एब्सेस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, फ्लेक्सिबल बोन, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस. अगर पेशेंट के सिम्टम जो हैं वो बेहतर नहीं हो रहे, इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो फिर और सराउंडिंग जो स्किन है वो सारी इन्वॉल्व हो रही है, तो फिर यू शुड सस्पेक्ट ऑफ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, और फिर आपको आईवी एंटीबायोटिक्स जो है उनकी तरफ जाना चाहिए. फेशियल सेलुलाइटिस एंड एक्यूट अथमोइडाइटिस, रेयरली कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस एंड वेरी रेयरली जनरलाइज्ड सेप्टिसीमिया में आल्सो डेवलप. डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एक्यूट एथमोइड साइनोसाइटिस से डिफरेंशिएट करेंगे. दे कैन बी इन्फेक्टेड सीवेशियस सिस्ट, सेलुलाइटिस, आईलिड एक्ट्रोपियन, पंक्टल एक्ट्रोपियन, allergic rhinitis and lacrimal sac or sinonasal tube. Chronic dacryocystitis, इसमें प्रेजेंटेशन जो है वो क्रॉनिक होगी, यानी कि लॉन्ग हिस्ट्री के साथ आएगा, और उसकी प्रेजेंटेशन जो सिम्टम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कोई एक्यूट नहीं होंगे. इट मे बी एसोसिएटेड विद द क्रॉनिक और रिकरेंट यूनिलैटरल कंजक्टिवाइटिस. A mucus seal is usually evident as a painless swelling as an inner canthus. ये swelling. But if an obvious swelling is absent, then pressure over the sac, it can result in mucopurulent canalicular reflux. इसका ट्रीटमेंट ये होगा, इसमें आपने DCR ही करना है, dacryocystoid rhinostomy. What is dacryocystoid rhinostomy? It's a bypass procedure that creates an anastomosis between lacrimal sac and nasal mucosa via bony ostium. Nasolacrimal duct की obstruction हो गई है, आपके टीयर स्टे कर रहे हैं आपके लैक्रिमल सैक में, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, आपने उनको ऑल्टरनेट पैसेज प्रोवाइड करना है. वो कैसे देंगे? सैक के दरमियान और नोज के दरमियान बोन के जरिए आपने एक कम्युनिकेशन बना देना है. DCR इज अमंग द कॉमन oculoplastic surgeries that are performed for managing epiphora due to nasolacrimal duct obstruction. Goals of surgery क्या है? To make a large bony ostium into nose, और वो पेटेंट भी रहे, ये नहीं कि बना लिया और फिर वो बंद हो गया, उसको पेटेंट भी रहना चाहिए. And to have a mucosal lined anastomosis. Clinical indications क्या है? Persistent congenital lacrimal duct obstruction, unresponsive to previous therapies. Congenital lacrimal duct obstruction associated with mucocele, dacryocystitis, and not responsive to other treatments. Primary acquired nasolacrimal duct obstruction and secondary acquired, जो कि other causes की वजह से होगी. Secondary acquired nasolacrimal duct obstruction. Types of DCR depending upon approach. It can be external or conventional DCR or endonasal or endoscopic DCR. Pre-operative requisites क्या हैं? There should be confirmation of diagnosis and clinical findings. HP levels, bleeding and clotting times, blood pressure measurement करनी है क्योंकि it can lead to bleeding. तो आपने सर्जिकल फील्ड जो है उसको ब्लीड फ्री करने के लिए ये सारे आपने प्रीरेक्विजिट्स पूरे करने हैं. रैंडम ब्लड शुगर्स और जो GA की इन्वेस्टिगेशंस हैं. Steps of surgery, anesthesia. It can be done under general anesthesia और local anesthesia, लेकिन GA जो है उसको आप प्रेफर करेंगे. Pre-operative nasal packing. Nasal mucosa is sprayed with lignocaine 1 to 2 puffs followed by packing of lignocaine and xylometazoline. The forceps should guide the medicated cotton from external nares superiorly and backwards so that it reaches the middle meatus, that is the site of ostium. ये osteomyelitis नहीं है, ये osteum है. यहाँ पे टाइपिंग एरर है. पहले एनेस्थीसिया का स्टेप है, उसके
बाद आपने नेजल पैकिंग करनी है, और अगर जीए में भी कर रहे हैं तो फिर आपने लोकल एनेस्थीसिया इन्फिल्ट्रेट देना होता है नेजल म्यूकोजा में। वो इसलिए एक तो एनेस्थेटाइज एक्शन प्रोवाइड करता है, दूसरे वो हीमोस्टैसिस जो है वो भी मेंटेन करेगा। नेजल पैकिंग। नेक्स्ट इज इंसिजन। मोस्ट कॉमनली कर्वी लीनियर इंसिजन इज गिवन, that is 10 to 12 millimeter in length and 3 to 4 millimeter from the medial canthus along the anterior lacrimal crest. Medial canthus से 3 to 4 millimeter away है और ये anterior lacrimal crest along the. Next is sac dissection. इंसिजन के बाद आपने सबक्यूटेनियस टिश्यू की डिसेक्शन करनी है, ऑर्बिकुलरिस ऑब्लिक के फाइबर्स की डिसेक्शन करनी है। डिसेक्शन आपने डीप डाउन करनी है क्योंकि आपने कहाँ पहुँचना है, बोन तक पहुँचना है, बोन ऑस्टियम तक जाना ना। उसके बाद आपने रिट्रैक्टर लगा के आपने क्या करना है, पेरियोस्टियम को सेपरेट करना है। इससे बोन से, लैक्रिमल बोन से पेरियोस्टियम को सेपरेट करना है। पेरियोस्टियम और लैक्रिमल फॉसा जो है उनको आपने लैटरली ले आना है, ठीक है, ताकि आपका जो लैक्रिमल फॉसा है वो एक्सपोज हो जाए, क्योंकि आपने जो स्टियोटमी करनी है वो अपनी लैक्रिमल फॉसा में करनी है। बोनी ऑस्टियम क्रिएशन, कैरिसन पंच इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट अ बोनी ऑस्टियम, ठीक है। स्मॉल पंच कैरियोस्टियम से जो है स्मॉल बाइट्स करने हैं आपने लैक्रिमल बोन में। अ लार्ज बोनी ऑस्टियम एक्सपोजिंग द नेजल म्यूकोजा, ये आपको जो रेड वाला नजर आ रहा है ये नेजल म्यूकोजा है। नेक्स्ट इज फ्लैप फॉर्मेशन, प्रोब एंटर करेंगे फ्रॉम द लोअर फंक्शन, जो आपकी एंटर होगी लैक्रिमल सैक में उसको डिस्टेंड करेगी, फिर आपने लैक्रिमल सैक पे एक इंसिजन देना है 11 नंबर प्लेट से। इसी तरह आपने जो नेजल म्यूकोजा है ना वहाँ पे भी इंसिजन देना है। फर्स्ट करेंगे आपका लैक्रिमल सैक है, यहाँ पे आपने इंसिजन दिया, और ये आपका नेजल म्यूकोजा है, यहाँ पे भी आपने इंसिजन दिया। इंसिजन दे के ये दो फ्लैप्स बन गए, एंटीरियर पोस्टीरियर। जो पोस्टीरियर फ्लैप्स हैं उसको आप कट कर देंगे, और जो ये वाला फ्लैप और ये वाला फ्लैप है ना इनको आपने एनास्टोमोस करना है। इंट्यूबेशन, ये ट्यूब पास की हुई है सिलिकॉन ट्यूब अपर एंड लोअर पंक्टा से, वो लैक्रिमल सैक में से गुजरेगी, फिर जो आपकी ऑस्टियम उसमें से पास होगी और फिर वो नेजल कैविटी में आ जाएगी। फिर उसको आपने क्या करना, उसको आपने नीचे से टाई कर देना, और जो ये दोनों फ्लैप्स हैं लैक्रिमल सैक का और नेजल म्यूकोजा का उनको आपने एनास्टोमोस कर देना। ये ट्यूब्स जो नेजल कैविटी में आपकी सिलिकॉन ट्यूब है उसको आपने नीचे से नॉट लगा के टाई कर देना। उसके बाद आपने ऑर्बिकुलरिस ऑब्लिक को क्लोज करना है, फिर आपने स्किन को क्लोज करना है। सर्जिकल फॉलोअप, पेशेंट इज डिस्चार्ज इफ स्टेबल, एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स पे आपने पेशेंट को डिस्चार्ज करना है। फर्स्ट पोस्टर पे आपने जो नेजल पैकिंग है उसको रिमूव करना है, वुंड को क्लीन करना है आपने। रेस्ट फॉर 1 वीक इज एडवाइज विदाउट हैवी लिफ्टिंग एक्सरसाइज और एनी स्ट्रेनुअस एक्टिविटी, ताकि ब्लीडिंग ना हो। हॉट ड्रिंक्स एंड फूड आर अवॉइडेड फॉर फर्स्ट 12 to 24 hours postoperatively. Cold compresses are placed on incision site for 48 hours to minimize the swelling and bruising. Or patient's head should remain elevated. Patient is instructed to avoid nose blowing for 1 week to decrease risk of hemorrhage. Skin sutures are removed अगर आपने non-absorbable लगाए तो, and silicone tube is removed after 3 to 6 months. Complications like every surgery, इसकी भी complications हैं। They can be intraoperative hemorrhage, which is minimized by adequate anesthetic, vasoconstriction, cautery and bone wax. Avoid excessive cauterization of the nasal mucosa that could induce scarring. There can be injury to the internal opening of common pedunculus when opening the sac. Cerebrospinal fluid leak due to penetration of the cribriform plate. जब आपने पंचिंग करनी है बोन की तो इतनी नहीं कर देनी, प्लेट को ही आप डैमेज कर दें। इंजरी टू द ऑर्बिटल कंटेंट्स फ्रॉम ट्रेन, श्रेडिंग ऑफ लेटरल नेजल म्यूकोजा ड्यू टू इम्प्रॉपर बोन रिमूवल, फेलियर टू कंप्लीटली ओपन द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द लैक्रिमल सैक रिजल्टिंग इन अ लैक्रिमल सम्प सिंड्रोम,
failure to adequately drain and remove a lacrimal sac diverticulum. Postoperatively, there can be hemorrhage, infection, incomplete improvement, persistent tearing, early loss of silicone tube, displacement हो सकती है, wound dehiscence हो सकती है, fibrosis of region of ostium, synecdoche between the middle turbinate, nasal septum और lateral wall, और they need या फिर पेशेंट को एडिशनल सर्जरी चाहिए हो सकती है अगर ये फेल हो गई आपका कन्वेंशनल DCR और देयर कैन बी साइनोसाइटिस. Outcomes of external DCR. A successful DCR is one when there is both anatomical as well as functional patterns. Anatomical भी नजर आ रहा है आपको और फंक्शन भी कर रहा है, एक ही बस एनाटॉमिक ही है और जब आपने उसको चेक किए पेटेंसी तो वो फ्लूइड जो है वो आपका नहीं पास कर रहा है. The patient should be patterned from syringing and patient should be free of symptoms. Comparison of external DCR and endoscopic DCR. External DCR में एनेस्थीसिया जो है यूजुअली इट इज़ परफॉर्म अंडर जनरल एनेस्थीसिया और जो एंडोस्कोपिक है लोकल में भी आप परफॉर्म कर सकते हैं. एक्सपेंस इज लो इन एक्सटर्नल DCR और एंडोस्कोपिक में इट्स हाई. स्कारिंग इज देयर इन एक्सटर्नल DCR बट देयर इज नो स्कार इन एंडोस्कोपिक. ऑपरेटिंग टाइम इज मोर एक्सटर्नल में और एंडोस्कोपिक में लेस ऑपरेटिंग टाइम है. हेमरेज के चांसेस आर मोर इन एक्सटर्नल एंड लेस इन एंडोस्कोपिक. एक्सटर्नल DCR कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एट अ डे केस. पेशेंट को आपने रखना है फॉलो करें एक दिन के लिए और फिर डिस्चार्ज करना है. जो एंडोस्कोपिक है उसको आप डे केस के तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं. डिस्ट्रप्शन ऑफ फ्लेक्सिबल पंप फंक्शन. एक्सटर्नल DCR में पंप फंक्शन जो है उसको डिस्ट्रप्शन हो सकती है, वो डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन एंडोस्कोपिक में नहीं होगा. सक्सेस रेट इज ग्रेटर देन 90% इन एक्सटर्नल DCR एंड ऑलमोस्ट 60 to 100% इन एंडोस्कोपिक. जो एक्सटर्नल DCR है इसमें जो लर्निंग कर्व है स्मॉल है, मतलब जो सर्जन है आपका वो कम टाइम में इसमें एक्सपर्टीज़ हो सकती है उसको, क्योंकि नेकेड आई से आप प्रोसीजर कर रहे हैं ना. जो एंडोस्कोपिक है उसमें सर्जन नीड्स मोर टाइम टू गेट एक्सपर्टीज. इफ यू टॉक अबाउट द एनाटॉमिकल सक्सेस रेट ओवरऑल इट इज़ फॉर DCR इट इज़ 94.4%, लेकिन एंडोस्कोपिक में 93.5% एंड एक्सटर्नल में 95.8%. फंक्शनल सक्सेस रेट ओवरऑल इज़ 90.4%, एंडोस्कोपिक में 90.7% और एक्सटर्नल में 90.1%. कॉम्प्लिकेशन रेट्स दोनों में लो हैं और टाइम टू सिम्टम रिलीफ एंडोस्कोपिक में 1.7 वीक्स में आपको पता चल जाएगा और एक्सटर्नल में 3.7 वीक्स. फॉर दिस टेबल आई वुड लाइक टू थैंक्स डॉक्टर मोमना. टेक होम मैसेज इज चूज राइट प्रोसीजर फॉर राइट पेशेंट. पेशेंट को काउंसल करें, उसको डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस दोनों बताएं दोनों प्रोसीजर्स के, और फिर फिजिशियन जो सर्जन और पेशेंट है दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कौन सा प्रोसीजर करना है विच इज़ बेटर फॉर पेशेंट. इजी MCQs है. A 75-year-old man has acute dactylocystitis. Appropriate management consists of which of following procedures? Irrigation of lacrimal sac करेंगे, oral antibiotics, canalicular probing to relieve infection pressure और oral steroids. Irrigation नहीं करेंगे, probing नहीं करेंगे, वो contraindicated. The most important predisposing factor for acute dactylocystitis is tear stasis. कोई भी etiology जिसकी वजह से आपके tear stay कर रहे हैं, कोई भी etiology, it will lead to dactylocystitis. Well presented, बहुत thoroughly cover किया सारा subject, excellent. पेशेंट हमारे पास एंटर होता है ना OPD में, दरवाज़ा खोलता है तो हमारी निगाह पड़ती है उसके चेहरे पे, तो अंदाज़ा हो जाता है कितनी वाटरिंग हो रही है. एक बंदा कहता है जी मुझे तो सुबह शाम हर वक्त पानी आता है और आपको उसके चेहरे पे पानी नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब है इतने वाटरिंग वाला मसला नहीं. तो कुछ चीज़ें हैं जो आप मरीज़ से पूछने से पहले आपको अंदाज़ा हो जाता है, जैसे एबनॉर्मल हेड पोस्चर है, फेशियल एसिमेट्री है, ये वाटरिंग, रेडनेस ऑफ द आई. तो एक्सपीरियंस के साथ आप जब पेशेंट वहाँ से आ रहे हैं ना, तो आपने पहले से एक असेसमेंट कर ली होती है कि भाई इसकी आँख से कितना पानी आ रहा है, इसने रुमाल हाथ में पकड़ा हुआ है, बार बार साफ कर रहा है, अगर तो ज़्यादा पानी आ रहा हो तो साफ कर रहे हो. और सो यू गेट एन असेसमेंट विद फर्स्ट लुक. So watering due to obstruction of the nasolacrimal passages is called
एपीफोरा। सो एपीफोरा और वाटरिंग में ये डिफरेंस है कि वाटरिंग हाइपर सिक्रीशन की वजह से किस किस चीज़ में वाटरिंग हो सकती है, किस कंडीशन में? फॉरेन बॉडी, गुड। कंजक्टिवाइटिस में, गुड। सो पहली चीज़ तो हमने ये एक्सक्लूड करनी होती है। पेशेंट कहता है मुझे वाटरिंग हो रही है, सो इज इट बिकॉज ऑफ द हाइपर सिक्रीशन? कंजक्टाइवल कंजेशन तो नहीं है, फॉरेन बॉडी तो नहीं है। पेशेंट को बगैर देखे कभी भी कोई चीज़ प्रिस्क्राइब ना करो। पानी आ रहा है, अच्छा यार ये ड्रॉप ले लो, अंदर फॉरेन बॉडी, तो आपको बाद में शर्मिंदगी होगी, वो दूसरा कोई निकाल लेगा और वो मतलब आपके नंबर 0 हो जाएंगे। सो ऑलवेज हैव अ लुक, पेशेंट को एग्जामिन करें, लिड एवॉइड करें, देखें वहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है। फॉरेन बॉडी हो तो रेडनेस होगी, कॉर्निया पे स्क्रैच पड़े होंगे, वो आपको नज़र आ जाएगा। सो पहली चीज़ तो आपने ये एक्सक्लूड कर ली कि वाटरिंग इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द हाइपर सिक्रीशन, इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। सो पेशेंट को मैं समझाता हूँ कि देखें जैसे आपकी किचन का वो शैंक बंद हो जाए, नीचे ड्रेन बंद हो जाए तो वो ऊपर से पानी गिरेगा, तो ये इसी तरह है। अगर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट बंद है तो पानी ऊपर से गिरेगा और गंद इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप एंटीबायोटिक देंगे भी 2 हफ्ते के लिए क्लियर होगा, फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। सो हमने जो रास्ता है वो क्लियर करना। जिस तरह मैं पहले भी कहा कि पहला काम हम देखते हैं पंक्चर स्टेनोसिस तो नहीं है, फिर हम अगला काम करते हैं प्रोबिंग सिरिंजिंग करके कैनालिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। सो ये 2 चीज़ें तो हम सेपरेटली डील करते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं और प्रोबिंग सिरिंजिंग पे आपको हार्ट स्टॉप आ रहा है और रिगर्जिटेशन हो रही है, अगर फ्लूइड क्लियर आ रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होगी? एक कैनालिकुलस में आपने सिरिंज से पानी डाला है, दूसरे पंक्टम से बाहर आ रहा है और फ्लूइड क्लियर है। हाँ जी, ठीक है। अगर फ्लूइड क्लियर है तो इसका मतलब है कैनालिकुलस से ही होके वापस आ गया। अगर एनएलडी ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसका मतलब है सैक में गया और वहाँ से आया तो वहाँ पे जो भी गंदमन इकट्ठा हुआ वो भी होगा। तो अगर म्यूकोपुरुलेंट है और डिस्चार्ज भी शामिल है इसमें, तो इसका मतलब है एनएलडी ऑब्स्ट्रक्शन। सो जब आप प्रोबिंग सिरिंजिंग करते हैं तो वो एक मतलब प्री रिक्विजिट है, हमने प्रूव करना है कि एनएलडी ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। सो एक तो प्रोब को जेंटली पास करते हैं बिल्कुल आराम से, ताकि आप अनड्यू प्रेशर नहीं लगाते, फाल्स पैसेज ना बन जाए। लिड को थोड़ा सा आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स और डाउनवर्ड्स थोड़ा सा रिट्रैक्ट करते हैं, वो जो कैनालिकुलस है वो स्ट्रेट हो जाए, फिर उसमें प्रोब पास करते हैं, देखते हैं हार्ट स्टॉप आ गया। हार्ट स्टॉप का मतलब है आप बोन के साथ इन टच हैं। सो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में नहीं जा रहा, नोज़ की टिप को उठा के देखते हैं नेज़ल पैसेजेस आपको कैसे नज़र आ रहे हैं। अगर आपको कोई पैथोलॉजी इंफीरियर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी नज़र आ रही है, पोलिप नज़र आ रहे हैं, नाक भरा हुआ है किसी भी वजह से, रेफर टू ENT स्पेशलिस्ट। जो ऑब्वियस चीज़ें हैं वो हमने पहले एक्सक्लूड कर। सो कई दफ़ा ये DNS की वजह से भी हो जाता है, वो DNS ठीक करते हैं, वो वेज़ोकंस्ट्रिक्टिव स्प्रे देते हैं, टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी कम होती है तो इम्प्रूव कर जाता है। सो कंजर्वेटिव जो भी स्टेप्स हैं वो हम पहले लेते हैं, उसके बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा तो फिर वही प्रोसीड टू DCR। अब DCR के 3 तरीके हैं, एक्सटर्नल, एंडोस्कोपिक, एंडोनेजल, और थर्ड क्या है? एंडोकैनालिकुलर लेजर। कैनालिकुलस से आप प्रोब कर सकते हैं। सो एक्सटर्नल में जो आप इंसिजन देते हैं वो आप 2 जगह दे सकते हैं, या तो 1 to 2 मिलीमीटर मीडियल टू द मीडियल कैंथस, या 1 सेंटीमीटर मीडियल टू मीडियल कैंथस। और दरमियान में क्या होता है जो आप छोड़ देते हैं जगह? एंगुलर वेन। सो एंगुलर वेन इज प्रेजेंट एट 8 मिलीमीटर मीडियल टू मीडियल कैंथस, और अगर एसेसरी एंगुलर वेन हो तो दैट इज 6 मिलीमीटर मीडियल टू
मीडियल कैंसर। सो 6 to 8 मिलीमीटर का जो एरिया है वो आप छोड़ देते हैं। यहाँ मीडियल कैंसर के बिल्कुल साथ इंसिजन दे या 1 सेंटीमीटर अवे इंसिजन दे। अच्छा, इसकी अपर लिमिट क्या होगी इंसिजन की? मीडियल कैंसर के लेवल पे यू हैव द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइड पोस्ट। तो जब आप बोन रिमूव करते हैं तो मीडियल कैंसर को साथ देखते जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी ऊपर से पंच ले लेंगे, ऊपर ओपनिंग करना ही वो उसमें सुराग हो या CSF राइनोरिया शुरू हो जाए, रिकरेंट अटैक्स ऑफ मेनिंजाइटिस होगा। मैं पेशेंट देखे होंगे, ठीक है। तो इसको आपने अवॉइड करना। सो इंसिजन आपने दे दिया, फिर उसके बाद हम स्टेट सीजर के साथ ऑर्बिकुलरिस को स्प्लिट कर लेते हैं और बोन हमारे पास आ जाती है। बोन और लैक्रिमल सैक के दरमियान में ब्लड डिसेक्शन करते हैं, गॉज पीस डालते हैं, वो सैक सेपरेट हो जाता है। सो जिस तरह उन्होंने बताया, आप प्रोब पास करेंगे, सैक डिस्टेंड होगा जहाँ पे प्रोब है, तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये वो जगह है जहाँ कॉमन कैनालिकुलस है, वहाँ पे आप इंसिजन देते हैं। अगर आप सिर्फ वर्टिकल इंसिजन देंगे तो वो दोबारा सील हो सकता है। सो एक वर्टिकल इंसिजन देके उसके बाद एक अपर एक लोअर इंसिजन देते हैं, तो ताकि ये दोनों ऐसे फ्लैप की तरह हो, राइट। सो ये एक सैक को अच्छी तरह ओपन करना भी ज़रूरी है। सिर्फ एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का इंसिजन काम नहीं करता, सैक में ओपनिंग बड़ी होनी चाहिए। वन ऑफ द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ DCR। अच्छा, फिर जहाँ पे आपने सैक में इंसिजन दिया उसके साथ वाली जो बोन है वो रिमूव करते हैं। सो बोन पंच हम एंटर करते हैं, जो ऑर्बिटल मार्जिन है, ऑर्बिटल मार्जिन के पास द बोन इज थिक, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फ्रैक्चर, यू हैव टू यूज चिजल एंड हैमर। पहले हम करते होते हैं, लेकिन अब वो जो हम टेक्निक करते हैं वो ये है कि थोड़ा सा आप ऑर्बिटल मार्जिन से डीप जाएंगे तो बोन थिन होगा, तो जो पंच है उसको थोड़ा सा डीप लेके जाए और जहाँ पे वो थिन होगी वहाँ खुद ही अंदर चले। सो यू डोंट हैव टू एक्सर्ट फोर्स, चिजल की ज़रूरत नहीं है। पहले सर पकड़ा हुआ है, छड़ी थोड़ा लेके लगे हुए हैं, वो लैक्रिमल बोन ही नहीं टूट रही क्योंकि ऑर्बिटल मार्जिन के पास बहुत थिक है। थोड़ा सा पीछे चले तो वो पीछे से फिर आप निबल करते हुए आगे आते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं। सो लार्ज ओपनिंग होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर की बोन। छोटी ओपनिंग होगी उसकी प्रॉब्लम, फिर फेलियर हो जाएगा DCR। सो आपने अगर एक बार बोन रिमूव कर लिया, बोन ने वापस रीजनरेट नहीं होना। अगर सॉफ्ट टिश्यू आ भी गया तो आप रीडू करेंगे, आसान है। बोन रिमूव करना ज़्यादा मुश्किल था। सो बोन रिमूव करते वक्त थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। अगर आपने अच्छी पैकिंग की हुई है तो फिर ब्लीडिंग नहीं होगी। सो एक आपने ऑपरेशन से पहले नेज़ल पैकिंग की है, फिर हम साथ लोकल जो वेजो कंस्ट्रिक्टर जैसे एड्रीनालीन इंजेक्शन है वो हम सबक्यूटेनियसली भी इंजेक्ट कर देते हैं बिफोर द ऑपरेशन, उससे भी हीमोस्टेसिस थोड़ी सी सिक्योर हो जाए। जब पेशेंट की पोजीशनिंग थोड़ा सा हेड एलिवेट कर दें, एनेस्थेटिस्ट को बता दें भाई थोड़ा हाइपोटेंसिव कर लें, ब्लड प्रेशर पहले देख लेते हैं ऑपरेशन शुरू करने से पहले, और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो ट्रांजामीन का इंजेक्शन लगा देते हैं। आमतौर पे हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया प्रेफर करते हैं, जो भी ऑर्बिटल सर्जरी हो, DCR। जितना ब्लड प्रेशर कम होगा ब्लीडिंग कम हो। सो 90/50-60 ये ब्लड प्रेशर होना चाहिए। 140-100 पे करेंगे ब्लीडिंग ही नहीं स्टॉप हो। सो ड्यूरिंग द ऑपरेशन प्रॉब्लम ये, जितना ब्लड आएगा आपको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, ऐसे ही इधर उधर। तो एन एक्सीलेंट हेमोस्टेसिस, एक आपका ऑपरेशन जल्दी ख़त्म हो जाए, विल जो ऑपरेशन टाइम है वो कम हो जाए, तो आपको नज़र ठीक आ रहा है। सो अच्छा हीमोस्टेसिस होना चाहिए ड्यूरिंग द ऑपरेशन। उसके बाद जो फ्लैप्स को भी इनास्टोमाइज करना पहले 10 साल हम ऐसे ही करते रहे हैं कि पहले पोस्टीरियर फ्लैप सूचर करते थे, फिर ट्यूब डालते थे, फिर उसको एंटीरियर फ्लैप सूचर करते थे। अब जो ट्रेंड है वो ये है कि पोस्टीरियर फ्लैप को सूचर करना ज़रा मुश्किल, वो डीप होता है।
और उसको इंगेज करना 60 वाइक्रल के साथ। तो अब ये हम करते हैं कि एंटीरियर फ्लैप लार्ज कर लेते हैं, ट्यूब डालिए और एंटीरियर फ्लैप को स्टिच करें। वो पोस्टीरियर फ्लैप को स्टिच नहीं करते, तो वो कम्युनिकेशन। जो एंडोस्कोपिक DCR है वो उसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि अगर एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस जैसा मेंशन किया, हमारी अप्रोच क्या होती है कि पहले एंटीबायोटिक दें, ओरल एंटीबायोटिक, एडिमा स्वेलिंग 2 हफ्ते में रिजॉल्व हो जाएगी। जब रिजॉल्व हो जाएगी फिर प्रोबिंग सिरिंजिंग करें कि भाई वो जो है कैनालिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। लेकिन अगर सैक डिस्टेंडेड है तो आपने DCR करना है, फिर ज़रूरत नहीं है। अगर म्यूकोसील बना हुआ है तो सैक तो आपने ओपन करना ही करना है, तो फिर प्रोबिंग सिरिंजिंग की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैं इंडिकेशन की बात है, हाँ एंडोस्कोपिक DCR की मैं बात करने लगा। तो एंडोस्कोपिक DCR का प्लस पॉइंट ये है कि आप एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस में भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल DCR नहीं करते हैं इसलिए कि इन्फेक्शन हुई है, वो फिस्टुला बन जाएगा और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा होगा, एडिमा होगा, ब्लीडिंग होगी। सो जब 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक्यूट फेज ओवर हो जाए फिर आप ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। एंडोस्कोपिक DCR में ये है कि आपने अंदर से बोन निकालनी है, सैक में इंसियम देना है, वो आप एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस में भी कर सकते हैं, रिजॉल्व जल्दी। डेक्रोसिस्टाइटिस जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो एंटीबायोटिक के साथ अगर पस बन गई है तो फिर आपने ड्रेन करनी है। आपको एब्सेस नज़र आ रही है, एक ब्लेड सीधा एंटर करे, पस बाहर आ जाए, ठीक है। आपको डरने की बात नहीं कि फिस्टुला बन जाएगा। ये वो जब पस आएगी बाहर पेशेंट एकदम से रिलीव हो जाए, पेन ख़त्म हो जाएगी, जो ट्रबल होती है वो पेशेंट कम हो जाएगी 2-3 हफ्ते के बाद। अब ये तो कंट्रोवर्सी है कि जी फिस्टुला बन गया है तो अब फिस्टुलेक्टमी करनी है कि नहीं करनी है। तो उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि देखें सड़क बन रही है ना, तो उस पर सारा उन्होंने पत्थर डाले हुए हैं। अब लोग जो है ना वो साइडों से जाते हैं, पगडंडियों से, मेन रास्ता बंद है ना, तो अगर आप मेन रास्ता खोल दें, जब सड़क बन जाए तो लोग पगडंडियों से जाना छोड़ देते हैं, वो फिर मेन रोड पे ही चलते हैं। इसी तरह अगर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट अगर खोल देंगे आप तो फिर वो फिस्टुला से नहीं जाएगा फ्लूइड, फिर वो मेन रास्ते से ही जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फिस्टुला विल क्लोज व्हेन यू ओपन द मेन पाथ। अगर नहीं ख़त्म होता तो फिर पकड़ के एक बाइट लें और वो कट करें फिस्टुला को और वहाँ एक सूचन लगा दें। तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपने मेन रोड खोलनी है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव। अच्छा, थर्ड जो मोडेलिटी है वो ये है एंडोकैनालिकुलर लेज़र। तो जो आप रेटिना पे लेज़र लगाते हैं उसको 100 टाइम्स पावरफुल कर लें तो वो आप प्रोब पास करेंगे कैनालिकुलस में। यू गिव 2-3 शॉट्स एंड ऑल द स्ट्रक्चर्स इन फ्रंट ऑफ द प्रोब विल बी एलिमिनेटेड, सैक, bone, nasal mucosa, but the opening will be very small, 1 to 2 millimeter। जो DCR में मेन प्रॉब्लम आती है कि जी 3 महीने बाद 6 महीने बाद पेशेंट हमारे पास वापस आया था, जी दोबारा वाटरिंग शुरू हो गई है। उसकी क्या वजह होती है कि जो इंटरनल ऑस्टियम है, नेजल म्यूकोसा है, उसकी स्कारिंग होती है। तो ऑस्टियम 6 महीने में 2 सेंटीमीटर से कम हो गया 1 सेंटीमीटर रहेगा। तो अगर जो कैनालिकुलर DCR का आपने रास्ता ही 1 मिलीमीटर का बनाया तो वो कितनी देर सर्वाइव करेगा। सो मेन प्रॉब्लम विद एंडोकैनालिकुलर DCR इज हाई फेलियर रेट। वो खैर उसमें ये है कि बस प्रोब पास करें और टक टक शॉट लगाएं और तो आप दोबारा कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं। डायोड भी बिल्कुल। लेकिन मसला यही है कि जब आप कैनालिकुलस से जाते हैं तो साइज छोटा होता है, ऑस्टियम बहुत छोटा बनता है, ओपनिंग ऑस्टियम ओपनिंग को कहते हैं, सो ओपनिंग स्मॉल होती है। तो अब ये DCR ट्यूब हम डालते हैं लेकिन इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। इसका रोल है जब कॉमन कैनालिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन हो, जब आप महसूस कर रहे हैं कि जो ट्यूब वहाँ पे रहेगी, थोड़ी बहुत स्पेस रहेगी, बाकी बोन आपने 2 सेंटीमीटर की रिमूव की है, इतना बड़ा चैनल बनाया है, तो ये 1 मिलीमीटर की ट्यूब क्या करेगी।
तो बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं। एनी क्वेश्चन कमेंट्स? चलो, थैंक यू।